বিশাল চুমিৰ বিশাল সম্পত্তিৰ তালিকা আৰু অবাধ ধন ব্যয়ৰ তালিকা আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে। এই তালিকা অনুসৰি বৰাগী মঠত 2000 বৰ্গফুটৰ ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙৰ নামত বিশালে নগদ ধন দিছিল 85 লাখ টকা। ডিব্ৰুগড় পূৰ্বাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টতো ক্ৰয় কৰিছিল ফ্লেট, যাৰ মূল্য আছিল 63.25 লাখ টকা। পূৰ্বাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটৰ বাবে কেছ পেমেণ্ট কৰিছিল 44 লাখ টকা। ডিব্ৰুগড়ত চুমি বৰা ডান্স একাডেমীৰ ডিজাইনৰ বাবে ব্যয় কৰিছিল ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙৰ বাবে ব্যয় কৰিছিল 33 লাখ টকা আৰু এই একাডেমীৰ ইণ্টেৰিয়ৰ নামতে বিশালে বিশাল ধনৰাশি খৰচ কৰিছিল বিশাল চুমিয়ে। আৰু ডান্স একাডেমীৰ টাইলছ কিনাৰ বাবদ নগদ 10 লাখ টকা, ডান্স একাডেমীৰ ছাউণ্ড প্ৰুফ ডিজাইনৰ বাবে 15 লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছিল। চুমি বৰাক উপহাৰ দিছিল 76 লাখ টকাৰ হীৰাৰ আঙুঠি। অকল বিশালে নহয়, চুমি বৰায়ো বিশালক দিছিল মূল্যৱান উপহাৰ। 2.95 লাখ টকাৰ দামী উপহাৰ বিশালক দিছিল চুমি বৰাই। চুমি বৰাৰ জন্মদিনত 2 লাখ টকাৰ টেডি বিয়াৰ উপহাৰ দিছিল বিশালে। চুমিৰ ব্যক্তিগত জিম প্ৰশিক্ষকৰ নামত মাহে ব্যয় কৰিছিল 50,000 টকাকৈ। বিয়াৰ পিছত ডুবাই ভ্ৰমণলৈ গৈছিল চুমি বৰা, বিশাল ফুকন আৰু আদিত্যম শইকীয়াই। হোটেল ব্ৰুজ আৰবত প্ৰতি নিশাৰ বাবদ যথেষ্ট টকা ব্যয় কৰিছিল বিশাল আৰু চুমিয়ে। প্ৰতি নিশাৰ ব্যয় 1 লাখ টকাকৈ, 5 দিনত 5 লাখ টকাকৈ। ডুবাইৰ মলত বজাৰ কৰাৰ নামতে খৰচ কৰিছিল 1.5 কোটি টকা। নাৰেংগীত আইডিয়েল ভিউ এপাৰ্টমেণ্টত ক্ৰয় কৰিছিল 1.5 কোটি টকা। তৰুণ নগৰত প্ৰত্যেক তৰুণ এপাৰ্টমেণ্টৰ ডুপ্লেক্স ক্ৰয় কৰিছিল 7 কোটি টকাত। আৰু মাতৃক 33 লাখ টকীয়া MG এষ্টাৰ বাহন উপহাৰ দিছিল বিশালে। চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাক 45 লাখ টকীয়া ফৰ্চুনাৰ গাড়ী উপহাৰ দিছিল বিশালে। উদয়পুৰৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ নামত খৰচ কৰিছিল 3 কোটি টকা। উদয়পুৰ গুৱাহাটী বিমানৰ খৰচে আছিল 33 লাখ টকা। আৰু মেডিচিন কোম্পানী স্থাপনৰ বাবে 10 বিঘা মাটি ক্ৰয়ৰ আগধন হিচাপে আগবঢ়াইছিল 25 লাখ টকা। ডিব্ৰুগড় লীলা গগৈ পথৰ ফ্লেট ক্ৰয়ৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছিল নগদ 44 লাখ টকা আৰু 18 লাখৰ চেক। বাণীপুৰত চুমি বৰা ৰাজীৱ বৰাৰ নামত 5 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰে 87 লাখ টকাত। চুমিক বিশালে দিয়া হীৰাৰ আঙুঠিৰ মূল্য আছিল 1.5 কোটি টকা। মুম্বাইত এটা ঔষধ কোম্পানীত বিনিয়োগ কৰে 50 লাখ টকা। কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে প্ৰতি মাহত ব্যয় কৰিছিল 3 লাখ টকাকৈ। লীলা গগৈ পথৰ 2টা ভাড়াঘৰৰ মাহৰ ভাড়া আছিল 25 লাখ টকা। আৰু এনেদৰে প্ৰবঞ্চনাৰ ধনেৰে বিলাসী জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়ি তুলিছিল চুমি আৰু বিশালে। ইমানেই নহয়, আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বিশালে মাতৃক উপহাৰ দিয়া 33 লাখ টকাৰ মূল্যৰ MG এষ্টাৰ বাহন। আজি আদালতত আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিব চিজাৰ লিষ্ট। বিশাল ফুকনৰ ঘৰত তালাচীত কি পালে আৰক্ষীয়ে, কি বিলাসী সামগ্ৰীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ভাৰতীয় আৰু বৈদেশিক মুদ্ৰা, জনালে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। विशाल फुकन के केस में हमने पहले उसका रेसिडेंस सर्च किया है। वहाँ से हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, लग्जरी आइटम्स बहुत मिले हैं हमें, कैश थोड़ा बहुत है, फॉरेन करेंसी है और मैक्सिमम उसके लग्जरी परचेजेस हमने सीजर किए हैं बिकॉज वो इन्वेस्टर्स के पैसे के हैं। और उसके अलावा हमने विशाल का ऑफिस प्रेमिसेस सर्च किया है। उसके एम्प्लॉयज़ जहाँ रहते थे वो भी एक फ्लैट है, उसको भी हमने सर्च किया है। वहाँ से हमने बहुत सारे इन्वेस्टर अग्रीमेंट्स सीज़ किए हैं। उनकी कुछ इन्वेस्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जो डायरी है वो हमने सीज़ किया है। ज्वेलरी आइटम सीज़ किए हैं और लग्जरी गुड्स सीज़ किए हैं। विशाल के साथ जो एक फर्म में पार्टनर है राजीव बोरा, वो पार्सिलिया फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसका हाउस रेसिडेंस, उसका जो रेसिडेंस है वो भी हमने सर्च किया है। वहाँ से भी हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया है, मोबाइल फ़ोन्स लिए हैं, लग्जरी गुड्स लिए हैं। किसको आप ढूंढ रहे हैं इस केस में हमने जिनको अपियर होने के लिए नोटिस दिया है वो सुमी बोरा है और सुमी बोरा का हस्बैंड है तपन बोरा, पर वो अभी तक हमारे यहाँ अपियर नहीं हुए हैं। कि हमने इस केस को 2 तारीख को ही रजिस्टर किया है, तो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो अमाउंट सामने आया है वो 60 करोड़ के आसपास का है। मतलब विशाल के खुद के कहने के हिसाब से भी वो फॉरेन ट्रिप्स जाता था और लोगों को भी अपने साथ ले जाता था। मतलब उसने ये बताया है कि उसका अर्निंग, वो जो शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करता था उससे उसका अर्निंग अच्छा था, तो वो उसी हिसाब से उसको जिस तरह की लाइफस्टाइल व्यतीत करनी थी उसके हिसाब से उसने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी सारे लगभग 5 या 6 फॉरेन ट्रिप्स किए। फॉरेन करेंसी हमें सिंगापुर का मिला है, मलेशिया का मिला है, UAE का मिला है।
तो ये मोस्टली उन्हीं जगह का है जहाँ पर विशाल खुद फॉरेन ट्रिप गया है। विशाल इन्वेस्टर्स के पैसे ले रहा है विदाउट कंप्लाइंग विद द लॉज ऑफ द लैंड, मतलब उसके पास सेबी का कोई लाइसेंस नहीं है ये करने के लिए, और उसको इस बात का पूरा नॉलेज था कि विदाउट सेबी लाइसेंस वो ये नहीं कर सकता है। फिर भी वो ये काम कंटिन्यू करते रहा और उसने अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक अश्योर्ड रिटर्न का अग्रीमेंट भी बनाया है, जहाँ पे उसने ऐसा मेंशन किया है कि 60 वर्किंग डेज के अंदर वो उनको 30% रिटर्न देगा उनके इन्वेस्टमेंट में। अभी तक हमें जो पता है विशाल की 2 गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियां उसने लोगों को गिफ्ट की थी, तो वो भी हम विशाल की प्रॉपर्टी में ही काउंट करेंगे। उसके एक MG हेक्टर है, एक फॉर्च्यूनर है और एक एस्टर है जो उसने अपने एक एम्प्लॉय को गिफ्ट की थी। उसके अलावा उसका एक रेसिडेंशियल फ्लैट है डिब्रूगढ़ में, एक और 2 रेंटेड फ्लैट्स है, एक ऑफिस प्रेमिसेस के तौर पे यूज़ होता है और एक उसने अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखा है रहने के लिए, और एक ऑफिस प्रेमिसेस वो नया कंस्ट्रक्ट कर रहा था डिब्रूगढ़। ट्रेडिंग विशाल लगभग 2021 से कर रहा है और आई थिंक इन्वेस्टर का पैसा, मतलब पहले अपने फैमिली और फ्रेंड्स का पैसा लेके कर रहा था और 2022 से वो बाहर के इन्वेस्टर से पैसा लेके हमने बैंक को लिखा है उसके अकाउंट्स फ्रीज करने के। उसके 4 HDFC में अकाउंट्स है, एक एक्सिस बैंक में, एक SBI में है, ये विशाल के अपने अकाउंट्स है। इसके अलावा राजीव बोरा, सुमी बोरा, तपन बोरा, पार्सिलिया कंसल्टेंसी, पार्सिलिया फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओनली पार्सिलिया फार्मास्यूटिकल्स, इसके एम्प्लॉयज़ के अकाउंट सारा हमने फ्रीज करने के लिए लिखा है। विशाলৰ এই প্ৰবঞ্চনাত কিদৰে জড়িত সুমি বৰাৰ নেতৃত্বতে বিশালে গোটাইছিল নামী দামী বিনিয়োগকাৰী। কেৱল অসম নহয়, বহিৰাজ্যৰ বিনিয়োগকাৰীও সোমাইছিল বিশালৰ প্ৰবঞ্চনাৰ এই জালত। विशाल ने खुद बताया है, उसमें उसने बताया है कि सुमी बोरा की शादी में उसने लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रैफल्स उदयपुर में शादी हुई थी और उसने ये बताया कि सुमी को वो अपनी बहन मानता है और वो शादी उसने सुमी को गिफ्ट की थी। हमने सुमी बोरा और तपन बोरा, उसका जो हस्बैंड है, उनको नोटिस दिया है, गुवाहाटी सिटी पुलिस के थ्रू हमने दिया है। उसके अलावा हमने राजीव बोरा और उसकी वाइफ जिंकी मिली को अपेयर होने का नोटिस दिया है, वो उनके फादर के थ्रू सर्व हुआ है, क्योंकि प्रेजेंटली ये चारों जन एब्सकॉन्डिंग है और हम इनको कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो हमने इनके फादर के थ्रू राजीव और उसकी वाइफ को नोटिस दिया। देखिए, नोटिस अगर आप सर्व करते हैं और उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन है और फिर भी वो अपेयर नहीं होते हैं, तो इसका प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि उनका अरेस्ट किया। मतलब शामिल होने का तो ऐसा है कि मोस्टली अपर असम के लोग ही शायद निकलेंगे, और अभी तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि जो इनको क्लाइंट ला के देते थे इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ इसके फर्म के एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी लोग इन्वेस्टर्स हैं। अब ये तो इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमें पता चलेगा कि किसका किसका विथ नॉलेज उन्होंने फ्रॉड किया है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। नाम सामने आया है सुमी बोरा, विशाल ने बोला है, और बाकी विटनेसेस जो हमने एग्जामिन किए हैं केस में, उन्होंने भी बोला है कि सुमी बोरा ने कॉन्टैक्ट किया या तपन बोरा ने कॉन्टैक्ट किया, कि उन्होंने उनसे इन्वेस्टमेंट सॉलिसिट किया। अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो किन लोगों ने इनके विशाल के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, किन बैंक्स में इसका अकाउंट है, ये किस तरह से लोगों के साथ अग्रीमेंट कर रहे थे, इनके एम्प्लॉय जो इसने फर्म बना रखा है इसके एम्प्लॉयज़ का क्या रोल था, पार्सिलिया कंसल्टेंसी के अलावा विशाल ने क्या क्या फर्म कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, उसमें पार्टनर्स कौन कौन हैं, इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें अभी मिली। नहीं, इससे पहले विशाल का ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई कंपनी नहीं था, बट विशाल ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो कुछ म्यूज़िक वीडियोस बनाता था, और उसके बाद उसने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया था। क्या अभी तक हमें ऐसा पता चला है कि इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला से भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं।